Thank you, Isaac Aaron to you, as well as the placement department and Abhishek Shruti sir and his team for providing me an opportunity to share my knowledge and experience with you all. And I apologize for the delayed joining, as you all are experiencing some of the difficult situation. It is our duty to help whatever possible. So, as we are familiar about the COVID and all related things. Today, we'll be studying some of the aspects of molecular diagnostics and molecular biology, as well as the technology. Those have changed the human life. We know that we have been diagnosing COVID with the utmost accuracy with the help of RT-PCR. And there are some diagnostic techniques available for the diagnostics of viral diseases, microbial diseases, as well as genetic diseases. Even some of the personalized medicine can be developed. So in today's session, we'll be taking some overview of those technologies, and thereafter we'll be going to learn about PCR and some of the details from one of the manufacturer of PCR, as well as from the WHO related presentations. So now I've been sharing a screen over here. Before that, I would like to discuss with you one thing. It's I would like to know from you all that what are the technologies in the life sciences, in the agriculture sciences, have changed the world. You may all discuss here by unmuting yourself, raising your hand, as well as you may communicate this in the chat box. So those are the participants here. What are the techniques we have been observing, we have been studying in the molecular biology? Those have changed the agriculture, changed the number of things. Yes, PCR, tissue culture technique, DNA fingerprinting. Good, that's good. Thank you, Ms. Ritika. Any other technologies, any other methodologies that have changed the agriculture entirely, or changed the medicine as well as the diagnostics completely? Yes, please. You have been learning in your syllabus, or if you're not familiar with, we'll start with the session. Here we will, in this presentation, we'll be going through the techniques. Those help to change and revolutionize the number of things. तो हम ऐसी टेक्निक्स के बारे में मेरा सवाल ये आपसे कि हम कुछ ऐसी टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजीज है जिन्होंने लाइफ साइंसेस है, बायोटेक्नोलॉजी है या एग्रीकल्चर साइंसेस है, इस सभी को चेंज करके रख दिया, रिवोल्यूशनाइज किया, नए नए चेंजेस आए, नई टेक्नोलॉजीज आई, और इसका एक्सपीरियंस हम लोग आज की तारीख में कर रहे हैं. सो आई वुड लाइक टू नो कैसी कौन सी टेक्नोलॉजीज है कि जिन्होंने ये सब चेंजेस किए हैं. अभी रितिका has given some answers. She has told us about PCR, tissue culture techniques, DNA fingerprinting. तो मिस्टर अजीत कुमार और जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी तकनीकें हैं कि जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी बचाने में पॉसिबल हुआ है या फिर अनाज की उपज बढ़ाने में पॉसिबिलिटी हुई है. सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ओके, गुड. एनीथिंग एल्स? Plant breeding, GMO crops, that's great. Anything else? ठीक है, तो चलो चलते हैं, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं इन टेक्नोलॉजीज के बारे में, और उसके पश्चात हम इस पे ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इसके ऑब्जर्वेशंस जो है हमारी डेली लाइफ में, या इसके जो एग्जांपल्स हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा. तो मैं यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ. So techniques, those have revolutionized
the biology. Mostly we'll be focusing on the molecular genetics and other techniques. So one of the very important technique here is recombinant DNA technology. That is genetic engineering, which is core aspects of biotechnology. And in today's date, most of the experiments are going on related to recombinant DNA technology. Even we are experiencing its applications in daily life. हम रूटीन लाइफ में भी इसका एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि कल हमने देखा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोड्यूस किया जा रहा इंसुलिन। तो 100 में से ऑलमोस्ट 7 से 10 लोगों को इंसुलिन की जरूरत होती है डेली। और ये जो इंसुलिन बनता है लार्ज स्केल में, जो ह्यूमन सेल से डीएनए लेके उसका ई कोलाई और रिलेटेड बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्लोनिंग करने के बाद में प्रोडक्शन किया जाता है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो आल्सो एन बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी। बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी में क्या है, क्या आप में से कोई मुझे बताएगा व्हाट इज देयर इन बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी? इसमें क्या है कि बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया कुछ प्रोटीन सीक्रेट करता है जिनको क्राई प्रोटीन्स कहते हैं। और इन क्राई प्रोटीन्स, ये जो क्राई प्रोटीन्स है, दे आर टॉक्सिक टू इंसेक्ट लार्वा। हेलिकोर्पा आर्मीजेरा या सोडोप्टेरा ल्यूटेरा जैसे इंसेक्ट्स हैं जिनकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है खेतों में, तो इनके लिए ये टॉक्सिक है और इनकी डेथ होती है इस प्रोटीन को खाने की वजह से। ये इनके इंटेस्टाइन्स में छेद कर देता है, अल्सरेशन कॉज करता है और जिसकी वजह से इनका डेथ होता है। सो हियर बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया में से जो क्राई प्रोटीन है उसके जीन्स निकालने के बाद उन जीन्स को कॉटन में क्लोन कर दिया गया, जिसको हम बैसिलस thuringiensis कॉटन कहते हैं, बीटी कॉटन कहते हैं। सो इसकी वजह से क्या हुआ कि कॉटन के जो सीडिंग्स थे या फ्रूटिंग थी उसमें बीटी के क्राई जीन्स आ गए, और जब इंसेक्ट इसके ऊपर अटैक करने लगा तो इस जीन्स का एक्सप्रेशन जो है उस लीव्स में होने के कारण इसमें क्राई प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, जो कि इंसेक्ट के लिए लीडल है, हानिकारक है। और इसकी वजह से इंसेक्ट का कॉटन पे अटैक जो है कम हुआ, और उसकी वजह से पेस्टिसाइड्स का भी एप्लीकेशन जो है वो कॉटन पे कम हुआ। मतलब कॉटन की अच्छी फसल हो गई, वो भी कम प्रोडक्शन कॉस्ट में, और पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन भी कम हुआ। तो ये जो दो एग्जांपल्स हमने देखे, एक देखा हमने लाइफ साइंसेस में और दूसरा जो देखा हमने एग्रीकल्चर साइंसेस में। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में हम ये प्रेजेंटेशन होने के बाद डिस्कशन करने वाले हैं। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, पहले तो जीन को लोकेट करना होता है कि वो जीन क्रोमोसोम पे कौन सी जगह पर है। उसके बाद में उस जीन को आइसोलेट किया जाता है, उसके बाद में उस जीन को अल्टर किया जाता है जिसकी वजह से उसका एक सही एक्सप्रेशन होने में उसका मदद होती है। उसके बाद में उस डीएनए के सेगमेंट स्टडी किए जाते हैं और फिर उनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से यूज किया जाता है नए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट में, जैसे कि हमने देखा इंसुलिन और ग्राइजिन्स फ्रॉम बीटी कॉटन। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक बात होती है, वो होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो हमें डीएनए को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में और उसका कटिंग करने में हेल्प करते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है। मतलब ऐसी सीजर्स या कैचिया जो हमें डीएनए आइडेंटिफाई करके उसको जरूरत जहां पर है वहां पे काटने में और सेपरेट करने में हेल्प करती है। So they recognize and help to cut the DNA at specific nucleotide sequences. तो इनको palindromic sequences कहा जाता है। और इनकी ये जो एंजाइम्स है, they are a part of immune system of bacteria. तो इनको सबसे पहले कहाँ पे आइडेंटिफाई किया, बैक्टीरिया की सेल्स में। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, सिंगल सेल मॉलिक्यूल्स है, ऑर्गेनिजम्स है, और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में अगर कोई वायरस या अनवांटेड डीएनए एंट्री करता है तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इसको काट देते हैं, इसको किल देते हैं। सो जैसे कि हमारी एंटीबॉडीज है हमें प्रोटेक्ट करती हैं, वैसे ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बैक्टीरिया को, इसके क्रोमोसोम को, इसके डीएनए को, उसके हेरिडिटरी मटेरियल को प्रोटेक्ट करते हैं। वायरल या अदर जो इन्फेस्टेशन से उनके डीएनए को ब्रेक डाउन करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में अलग अलग टाइप होते हैं। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, दे आर टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स।
टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बायोटेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। By adding methyl groups to the recognition sequences to protect itself from being digested by its own enzyme in bacteria. तो बैक्टीरिया क्या करता है कि इसके खुद के भी एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएजेस होता है, और ये प्रोटीएज क्या करते हैं, ये प्रोटीएजेस या उसके कुछ जो न्यूक्लिएजेस हैं ये डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं। तो इसका खुद का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके इनिशियल सेगमेंट्स में, इनिशियल सीक्वेंसेस में मिथिल ग्रुप का एडिशन किया जाता है उसकी क्रोमोसोम की ओर से, जिससे कि बैक्टीरिया के एंजाइम से पहचान सके कि ये खुद का डीएनए है और फिर वो उसको नहीं काटेंगे। तो इससे खुद का डीएनए डाइजेशन से बचने के लिए उसका मिथाइलेशन किया जाता है। So here is characteristic of some common type 2 restriction enzymes used in recombinant DNA technology. ये जो recombinant DNA technology और कुछ जो presentations है जो ऐसे चुने गए हैं जो लाइफ साइंसेस और एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए कॉमन है। तो एंजाइम्स हम देखने वाले हैं, उस एंजाइम का ओरिजिन, उसका जो सोर्स बैक्टीरिया है वो देखने वाले हैं, उसके सीक्वेंस की स्पेशलिटी देखने वाले हैं, और ये किस तरह का फ्रैगमेंटेशन या कटिंग करता है वो भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो एंजाइम है दैट इज BAM-HI, जो है बैसिलस अमाइलोलिक्विफेशंस बैक्टीरिया से मिलता है, और इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है 5' एंड पे GG80CC 3' एंड पे, सो साइमल्टेनियस का जो पैरेलल सीक्वेंस भी है। और ये बैक्टीरिया का जो एंजाइम है BAM-HI, ये टाइप ऑफ फ्रैगमेंट एंड प्रोड्यूस जो है इसका, तो ये कोहेसिव एंड्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसके बाद में जो है COF-I या COF-1 जो है क्लॉस्ट्रिडियम फॉर्मिकोएसिटम बैक्टीरिया से मिलता है, और ये भी कोहेसिव सीक्वेंस जो है फ्रैगमेंट का एंड का प्रोड्यूस करता है। इसके बाद में सबसे कॉमनली हम पहचानते हैं बैक्टीरिया जो है दैट इज ई कोलाई बैक्टीरिया, और ई कोलाई बैक्टीरिया में से EcoR1 जो जीन है उसका जो कोहेसिव ये EcoR1 जो एंजाइम है ये भी कोहेसिव फ्रैगमेंटेशन का प्रोडक्शन करता है जब ये डीएनए को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद में EcoR2 है, ये भी इस इश्चेरिशिया कोलाई से ही मिलता है, और ये भी कोहेसिव एंड पे डाइजेशन करवाता है। उसके बाद हीमोफिलस इजिप्टस है HAE3 या III, तो ये जो कैसे डाइजेशन करता है, तो डीएनए के ब्लंट एंड्स जो है ये रेडी करता है या रखता है। HIN3 जो है ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से मिलता है, और ये भी कोहेसिव डाइजेशन डीएनए का करता है। PVU2 जो है ये प्रोटियस वल्गैरिस से मिलता है, और ये डीएनए का ब्लंट एंड डाइजेशन करवाता है। तो इनका नाम कैसे रखा जाता है? The first 3 letters of abbreviation for each restriction enzyme refer to the bacterial species of the enzyme from which enzyme has been isolated. और इको जो अगर हम देखेंगे तो इको मतलब इश्चेरिशिया कोलाई, the 4th letter may refer to the strain of bacteria from which enzyme was isolated. The R, that is indicates enzyme was isolated from RY13 strain. Roman numerals that follow the letters allow different enzymes from the same species to be identified. तो जैसे कि इश्चेरिशिया कोलाई है जो RY13 मतलब R वहां पे है, और 1 जो है मतलब ये that is number 1 enzyme isolated from the Escherichia coli. इसके बाद में EcoR2 है, HAE I3 है, उसके बाद में HINT I2 है, PUV2 है। तो ऐसे हम इसका नॉमेनक्लेचर रखते हैं, उसके ऊपर इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। ये सभी जो एंजाइम्स हैं इनका बहुत कॉमन एप्लीकेशन और ज्यादा तौर पर एप्लीकेशन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज में होता है। Someone has raised hand, I think.
सो कटिंग एंड जॉइनिंग ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स, तो ये जो कोहेसिव एंड होते हैं या ब्लंट एंड होते हैं, ये कैसे होते हैं? तो फ्रैगमेंट विद शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंगिंग एंड जो होता है, जिसे कोहेसिव एंड्स कहा जाता है। और ब्लंट एंड मतलब कि इवन लिंक्ड एंड्स फ्रॉम बोथ सिंगल स्ट्रैंड्स, तो ये जो है ये ब्लंट एंड इन्हें कहा जाता है। सो अकॉर्डिंगली डीएनए जो डाइजेस्ट होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो ये डाइजेस्ट होता है कोहेसिव एंड से या फिर ब्लंट एंड जैसे, मतलब जो अनपैरेलल इसका डाइजेशन होगा या इक्वली इसका डाइजेशन हो जाएगा। So here we can see how it has been digested. तो इसमें हम देखेंगे कि some enzymes such as HindI2 जो है वो DNA में staggered cuts बना देता है। So it produces single stranded cohesive ends, और ये जो ends होते हैं ये sticky ends होते हैं। Other restriction enzymes में अगर हम देखेंगे तो PVU2 जो है, तो ये DNA में ब्लंट एंड से डाइजेशन करता है। तो ये ब्लंट एंड से जब डाइजेशन होता है तो इसका जॉइनिंग अगर हमें करना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, तो इसके लिए हमें फिर से स्टिकी एंड जो है वो एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम्स। तो इसके अलावा डाइजेशन विद HindI2 जो है, इससे भी दो टाइप का डाइजेशन होता है। The DNA molecule cut with the same restriction enzyme has complementary sticky ends that pair if fragments are mixed together. तो अगर ये डीएनए से डाइजेशन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं तो वो फिर से पेयर हो सकते हैं। सो गैप इन शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है वो उसमें ब्रेक डाउन किया जाता है। उसके बाद में द निक्स इन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ द टू फ्रैगमेंट्स कैन बी सील्ड बाय डीएनए लाइगेज। तो जैसे हम मॉलिक्यूलर सीजर्स हमने देखी है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो सिमिलरली डीएनए लाइगेज नाम का जो एंजाइम होता है वो एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू की तौर पे काम करता है, और ये इस डीएनए मॉलिक्यूल्स को जुड़ने में और एक दूसरे को चिपकने में हेल्प करता है। तो इसके बाद में जो सेकंड टेक्निक है वो होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय साइज थ्रू जेल मीडियम के से किया जाता है। तो अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है इसमें कॉमनली यूज किया जाता है, और इसमें डीएनए के फ्रैगमेंट्स लोड किए जाते हैं, जिसमें स्मॉलर फ्रैगमेंट जो है वो फास्ट रन होते हैं और वो नीचे आते हैं रन होते, और जो लार्जर फ्रैगमेंट्स है दे रिमेन स्टैक्ड इन दी अगारोस जेल पोर्स, और वो ऊपर रहते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन, मॉलिक्यूलर साइज डिटर्मिनेशन जो है, वेट डिटर्मिनेशन जो है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से किया जाता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें DNA samples containing the fragment of different sizes are placed in a well in an agar gel। तो यहाँ पे agar gel है, पिपेट की हेल्प से इमेज A में DNA फ्रैगमेंट्स लोड किए जा रहे हैं, और इलेक्ट्रोफोरेसिस के सैंपल लोड करने के पहले उसको करंट अप्लाई किया जाता है। इलेक्ट्रिकल करंट इज पास थ्रू द जेल, जो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक डीएनए के फ्रैगमेंट्स मूव होते हैं। तो लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट हम देख रहे हैं इमेज बी में कि वो पोर्स, जेल पोर्स में बीच में ही रुक जाते हैं ड्यू टू उनका मॉलिक्यूलर वेट, एंड दोज आर स्मॉल फ्रैगमेंट्स दैट कमिंग डाउन फास्टर। So all DNA fragments move towards the positive pole. Small fragments migrate faster than the large fragments. After electrophoresis, the fragments of different sizes have migrated different distances. So based upon that distances, molecular markers डाल के या ladders डाल के इनकी साइज को पहचाना जा सकता है, इनके वेट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। A dye specific to nucleic acid is added to the gel and DNA fragments appear orange under UV light। या फिर इसमें कोई UV लाइट में ल्यूमिनेसेंस फ्लोरोसेंस देने वाली डाइज को भी ऐड किया जाता है, जिसके हिसाब से हमें फ्लोरोसेंस दिखता है और डीएनए फ्रैगमेंट्स हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसका स्टडी कर सकते हैं।
So here we can see the DNA fragments appear orange under UV light. तो यहाँ पे जो भी डीएनए फ्रैगमेंट्स दिख रहे हैं, सबसे ऊपर जो बड़े पैचेस हमें दिख रहे हैं वो हेवी डीएनए लार्ज साइज डीएनए फ्रैगमेंट्स है, और जितना नीचे हम जाएंगे उतने स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट्स या डीएनए के कट्स या सेगमेंट्स हमें दिखते हैं. So viewing the DNA fragments, locating DNA fragments with southern blotting and probes. So southern blotting is one of the very important aspects of genetic engineering, जिसमें हमें DNA of interest या gene of interest identify करने में help होती है. तो DNA और RNA with the base sequences complementary to the sequence in the gene of interest एज अ प्रोब इसमें यूज किया जाता है. तो प्रोब क्या करता है, हमें हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. द प्रोब इज यूजुअली लेबल्ड फॉर इजी डिटेक्शन. रेडियो एक्टिव प्रोब इसमें यूज होता है, जिसमें फॉस्फेट 32 रेडियो एक्टिव जो मॉलिक्यूल है वो हम देखते हैं. इसके अलावा फ्लोरोसेंट टैग भी इसमें जोड़ा जाता है. तो इस इमेज से हम समझेंगे कि डीएनए में ब्लॉटिंग कैसे किया जाता है. डीएनए फ्रैगमेंट जो है हमने जेल पे तो सेपरेट कर लिए, उसके बाद में जेल को सोक किया जाता है अल्कली सॉल्यूशन में, जो डीनेचर कर देता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, एंड देन इट इज देन प्लेस्ड ऑन टॉप प्लेटफॉर्म इन अ डिश कंटेनिंग बफर. तो इसमें वेट रखा जाता है, उसके बाद ब्लॉटिंग पेपर होता है, उसके बाद नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन और जेल होता है, उसके बाद फिर से ब्लॉटिंग पेपर होता है, और ये सब जो है बफर ड्रॉन अप इनटू द टॉप लेयर ऑफ ब्लॉटिंग पेपर दैट पासेस थ्रू द जेल कैरिंग द डीएनए ऑनटू द मेम्ब्रेन. सो जेल में से डीएनए जो है उस मेम्ब्रेन पे लिया जाता है. तो नाइट्रोसेल्युलोज या जो भी मेम्ब्रेन्स इसमें यूज होते हैं, सो इन मेम्ब्रेन्स पे हमारे जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है इनको लिया जाता है. उसके बाद में मेम्ब्रेन जो है वो जेल से अलग कर दिया जाता है. द डीएनए ऑन द मेम्ब्रेन इज नाउ फिक्स्ड. तो ये फिक्स होने के बाद में इसको एक हाइब्रिडाइजेशन बॉटल में रखा जाता है, जिसमें एक सॉल्यूशन होता है जिसमें रेडियो एक्टिव लेवल प्रोब होता है, जिसमें फॉस्फोरस 32 जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये होता है. तो ये जो प्रोब है बाइंड्स टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रैगमेंट ऑन द मेम्ब्रेन. तो ये प्रोब कहीं पे भी बाइंड करेगा क्या, नहीं करेगा. जबकि ये डीएनए सीक्वेंस है, इट विल bind to complementary fragment, and complementary fragment means fragment of our interest, and hence will be able to identify the DNA. तो अब तो हमने हमारा जीन आइडेंटिफाई कर लिया, उसको कट कर लिया, उसको जैसे चाहिए था वैसे जोड़ दिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और लाइगेज स्किल्स से हमने काम किया, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने उसको सेपरेट कर दिया, उसके बाद में उसका ब्लॉटिंग करके उसको हमने ब्लॉटिंग पेपर या नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे ले लिया. उसको मतलब जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको फिर से आइडेंटिफाई कैसे किया हमने, तो रेडियो एक्टिव प्रोब की हेल्प से. इससे हमें पता चला कि हाँ यही हमारा मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है या डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है. उसके बाद में पार्ट आता है जीन क्लोनिंग का. तो हमारे पास तो हमारा जीन है, तो अब हमें क्या करना है, तो हमें उसको एम्प्लीफाई करना है वाया बैक्टीरियल सेल. तो क्लोनिंग वेक्टर इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जबकि हम इमीडिएटली कोई भी डीएनए या मॉलिक्यूल बैक्टीरिया की बॉडी में नहीं डाल सकते हैं. जैसे हमने देखा कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम होता है, और इम्यून सिस्टम में न्यूक्लियेजेस होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, जो कोई भी फॉरेन मटेरियल या डीएनए उसकी बॉडी में आता है तो उसको वो डाइजेस्ट कर देते हैं. इसीलिए हम एक ऐसे सेफ व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं जो हमारा डीएनए सेफली सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा या लेके जाएगा. तो उसको क्लोनिंग वेक्टर कहा जाता है. The replicating DNA molecule attached with foreign DNA fragment to be introduced into a cell. So has a features that make it easier to insert DNA and select for presence of a vector in a cell.
तो इसमें क्या होता है वेक्टर में, तो वेक्टर में होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो उसको मल्टीप्लाई होने में हेल्प करेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स जो आइडेंटिफाई करने में हमारा बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन अगर ये इसमें वेक्टर अंदर गया है या नहीं गया है ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। और एक होती है क्लोनिंग साइट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो इसमें हम देखेंगे कि एक वेक्टर है। फर्स्ट, a cloning vector must contain a origin of replication recognized in the host cell so that it is replicated along with the DNA that it carries. Origin of replication है, selectable marker है और unique restriction enzyme cleavage sites है। तो इसमें क्या होगा, second, it should carry selectable markers traits that enable cells containing the vector to be selected or identified. Third, a cloning vector needs a single cleavage site for each of one or more restriction enzymes used. तो ये जो वेक्टर है इसका डिजाइन कैसे किया जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से इसका मल्टीप्लिकेशन शुरू होने में हमें हेल्प मिलेगी। इसके अलावा इसमें यूनिक रिस्ट्रिक्शन क्लीवेज साइट्स है, तो इसको हम सिलेक्टिवली क्लीव कर सकते हैं या कट कर सकते हैं और इसमें हम हमारा मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीवेज साइट्स, जिसकी वजह से ये कहीं पे भी कट नहीं होगा, तो इस रिस्ट्रिक्शन साइट पे ही कट होगा। तो एक स्पेसिफिक जो मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है हमारा वो उसमें सेफ तरीके से हम डाल सकेंगे। इसके बाद इसमें सिलेक्टिबल मार्कर होता है, मतलब कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, अगर हम वेक्टर में हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, फ्रैगमेंट जीन डालते हैं और उसको हम बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं, तो बैक्टीरिया में भी ये एक्टिवेट हो जाएगा और बैक्टीरिया को जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे जीन डाला है उसके अकॉर्डिंगली उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। मतलब अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन या कोई एंटी पेनिसिलिन का एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस का जीन डालते हैं तो ये जो बैक्टीरिया है ये पेनिसिलिन को रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो बाकी के जो बैक्टीरिया हैं जिनमें हमारा वेक्टर अंदर पेनिट्रेट नहीं कर चुका है तो वो तो पेनिसिलिन से मर जाएंगे, लेकिन जिन बैक्टीरिया के अंदर हमारा वेक्टर पेनिट्रेट कर गया है वो रेजिस्टेंस डेवलप होने के बाद उस पेनिसिलिन की इसमें भी जिंदा रह पाएंगे। तो वेक्टर्स में अलग अलग टाइप होते हैं, तो वन ऑफ द टाइप इज प्लाज्मिड वेक्टर्स। दूसरे जो होते हैं लिंकर्स, सिंथेटिक डीएनए फ्रैगमेंट्स कंटेनिंग रिस्ट्रिक्शन साइट्स और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल्स विद प्लाज्मिड्स। Then selectable markers are used to confirm whether the cells have been transformed or not. जैसे हमने देखा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो मार्कर है is a selectable marker that helps us to identify whether our cell has been transformed or not. So here is again a vector PUC19 नाम का ये जो वेक्टर है बहुत कॉमनली और इनिशियली इसका यूज किया गया, अभी भी इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें एक रिस्ट्रिक्शन साइट है जो है LAGZ+ रिस्ट्रिक्शन साइट। इसमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है जहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा और इसका एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का सिलेक्टिबल मार्कर है जो एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस इसको प्रदान करता है। तो प्लाज्मिड में EcoRI से फॉरेन जो रिस्ट्रिक्शन किया गया उसमें फॉरेन डीएनए जो है the plasmid and the foreign DNA are cut by the same restriction enzymes, in this case EcoR1। और इसमें क्या होता है कि complementary sticky ends प्रोड्यूस होते हैं जो एक दूसरे को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। तो हम ये थर्ड फेज में देख सकते हैं, when mixed the sticky ends anneal joining the foreign DNA and plasmid, तो डीएनए लाइगेज जो है फिर उनको ज्वाइन कर देगा। मतलब सीजर जो है हमारी मॉलिक्यूलर सीजर्स EcoR1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस इसको डाइजेस्ट करेगी और इसको ज्वाइन करने में चिपकाने में हमें डीएनए लाइगेज हेल्प करेगा। सो nicks in the sugar phosphate bonds are sealed by DNA ligase enzyme। तो इस तरीके से किसी भी वेक्टर में या प्लाज्मिड में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया जाता है।
तो इसमें क्या है कि एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, रिस्ट्रिक्शन साइट है, LAGZ प्लस का सिलेक्टिव रिस्ट्रिक्शन साइट है, और एम्पिसिलिन रजिस्टर जीन एक सिलेक्टिबल मार्कर है। डीएनए डालने के बाद जो कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, LAGZ जीन में इंसर्ट हो जाएगा। तो बैक्टीरिया दैट आर LAGZ नेगेटिव आर ट्रांसफॉर्म बाय द प्लाज्मिड, क्योंकि हम क्या करेंगे, LAGZ के इन बिटवीन हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे। तो जो भी LAGZ पॉजिटिव बैक्टीरिया थे या प्लाज्मिड था, वो LAGZ नेगेटिव हो जाएगा। द बैक्टीरिया विथ एन इंटैक्ट प्लाज्मिड produce beta galactosidase which cleaves X-gal and makes the colonies blue. Plates on which ampicillin and with X-gal इसमें incorporate किया जाता है. The bacteria with recombinant plasmid will not be able to synthesize beta galactosidase. तो LAGZ जीन क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का प्रोडक्शन करता है, और ये बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है, गैलेक्टोज या एक्स गैलेक्टोज जो है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो भी बैक्टीरिया जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, हमारा प्लाज्मिड नहीं गया है अंदर या उसमें क्लोनिंग नहीं हुआ है, तो इसमें क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज का प्रोडक्शन हो जाएगा, और ये जो कॉलोनीज है ये प्लेट पे ब्लू दिखेंगी। लेकिन जो बैक्टीरिया जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है, जो नहीं सिंथेसिस कर पाएंगे बीटा गैलेक्टोसिडेज, और उसकी वजह से उनका जो कलर है वो व्हाइट रहेगा। सो बैक्टीरिया विदाउट प्लाज्मिड विल नॉट ग्रो, एज वेल एज इसमें क्या है कि एम्पिसिलिन भी डाला हुआ है। तो जो हमारे बैक्टीरियाज है जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इनके अंदर एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन आ जाएगा। तो व्हाइट कॉलोनी बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पे अच्छी ग्रो हो जाएगी, जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया हुआ है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। सो उनको प्लेट पे लेने के बाद में बैक्टीरियाज को प्लेट ऑन अ मीडियम विद एम्पिसिलिन एक्स-गैल, और व्हाइट कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया कैरिंग अ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। इसमें जो भी व्हाइट कॉलोनीज दिख रही है हमें, तो इसमें क्यों व्हाइट कॉलोनीज दिख रही है, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज द गैलेक्टोसिडेज एंड नॉट एबल टू डाइजेस्ट द गैलेक्टोज। तो इसमें एक सिंथेटिक सबस्ट्रेट यूज किया है एक्स गैलेक्टोज, जो डाइजेस्ट करने वाली कॉलोनी जो है वो ब्लू दिखती है, और जिसके पास गैलेक्टोज नहीं है, गैलेक्टोसिडेज नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते और वो व्हाइट ही रहता है। तो इसमें हमारी व्हाइट कॉलोनी जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का एंट्री हो चुका है। So comparison of plasmids, phage lambda vectors, cosmids and bacterial artificial chromosomes. ये नंबर ऑफ वेक्टर्स है, इसमें 4 इंपॉर्टेंट वेक्टर्स होते हैं। एक तो प्लाज्मिड वेक्टर होता है, प्लाज्मिड मतलब बैक्टीरिया के अंदर उसके डीएनए के साथ, क्रोमोसोम के साथ एक और छोटा सा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसको प्लाज्मिड कहते हैं। वो अगर हम बैक्टीरिया की सेल से निकाल भी दें तो बैक्टीरिया को उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसका लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहता है। दूसरा जो होता है फाज लैम्डा, ये जो है एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया फाज का प्रोडक्शन करता है। तीसरा जो है कॉस्मिड है, जिसमें प्लाज्मिड और फाज का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद में तो फोर्थ वन इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जो वो आर्टिफिशियली डेवलप किया गया बैक्टीरिया को क्रोमोसोम है। तो बेस्ड अपॉन द साइज भी इनका कैरेक्टराइजेशन होता है। मेथड ऑफ प्रोपगेशन हर एक की डिफरेंट है, एज वेल एज इनका जो बैक्टीरिया में एंट्री है या इंट्रोडक्शन है, ये भी अलग तरीके से होता है। प्लाज्मिड का जो साइज है ज़्यादा से ज़्यादा 15 KB का डीएनए हम उसमें क्लोन कर सकते हैं, और जैसे हमारा पेन ड्राइव होता है कि 1 GB 1 TB का होता है, 256 MB का होता है, तो वैसे प्लाज्मिड्स में जो डीएनए विद इंफॉर्मेशन हम क्लोन कर रहे हैं वो मैक्सिमम 15 KB का रहेगा, और ये प्लाज्मिड रेप्लिकेशन के थ्रू इसका प्रोपगेशन होगा, और ये बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे फाज लैम्डा जो है वो 23 KB इसका साइज लिमिट है डीएनए कैरी करने का, एक्स्ट्रा डीएनए। इसका फाज रिप्रोडक्शन के मेथड से प्रोपगेशन होता है, और ये फाज इन्फेक्शन के मोड से बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा कॉस्मिड है, इसका जो साइज है कैरी करने के लिए ये 44 KB। प्लाज्मिड रिप्रोडक्शन के थ्रू इसका
प्रोपगेशन होता है, जैसे फाज रिप्रोडक्शन होता है और प्लाज्मिड रेप्लिकेशन होता है, तो ये इसमें प्लाज्मिड रिप्रोडक्शन होता है बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन। और फाज के जैसे इन्फेक्ट करके ये बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो 300 केबी तक का डीएनए कैरी कर सकता है, और प्लाज्मिड रिप्रोडक्शन की तरह इसका मेथड ऑफ प्रोपगेशन होता है। और जबकि ये बहुत बड़ी साइज में होता है तो इलेक्ट्रोपल्सेशन की हेल्प से इसको बैक्टीरिया के अंदर भेजा जाता है। तो इलेक्ट्रोपोरेशन मतलब या पल्सेशन मतलब इलेक्ट्रिकल पल्सेस दैट इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। तो इसके बाद आता है एम्प्लीफाइंग द डीएनए फ्रैगमेंट्स विद द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका हम और भी डिटेल देखने वाले हैं पीसीआर का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं टैग पॉलीमरेजेस, stable DNA polymerases at a high temperature. The researcher designed specific oligonucleotide primers that serve as ends of the amplified fragment, very similar to replication. ये जो टैग पॉलीमरेज है, ये थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से आइडेंटिफाई किए गए एंजाइम्स है जो उसके रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, और दे आर स्टेबल अप टू हायर टेम्परेचर। कैसे काम होता है पीसीआर में, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद हम डिटेल भी आने वाले सेशन में देखने वाले हैं। तो इसमें डीएनए को हीट किया जाता है 90 to 100 डिग्री सेल्सियस, दो उसके स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं। देन डीएनए इज immediately cooled to 30 to 65 degrees Celsius to allow short single strand primers to adhere to their complementary sequences. The solution is heated to 60 to 70 degrees Celsius again. DNA polymerases synthesizes new DNA strands, creating two new double-stranded DNA molecules. उसके बाद में entire circle is repeated. Each time the circle is repeated, the amount of target DNA doubles. तो ऐसे इसका साइकिल जैसे पीसीआर में रिपीट हो जाता है, वैसे डीएनए मॉलिक्यूल जो है टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल्स, इनकी क्वांटिटी डबल होती जाती है। वैसे फ्यू लैक्स ऑफ डीएनए हम एक इसमें पीसीआर एक्सपेरिमेंट में जो भी हमारे इंटरेस्ट पे है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। So here is an experimentation in which we can see the Bt toxin gene was isolated from the bacterium Bacillus thuringiensis. तो इसमें से हमने क्या किया, क्रोमोसोम से जो ब्लू कलर का बीटी टॉक्सिन जीन था वो आइसोलेट कर दिया, और इसको हमने ई कोलाई में क्लोन कर दिया, ई कोलाई प्लाज्मिड से। द फुल लेंथ बीटी जीन एंड फ्रैगमेंट्स ऑफ द जीन वेर लाइगेटेड टू द न्यूप्लस जीन्स। तो इसमें डालने के बाद में, एक्सप्रेशन वेक्टर बनाने के बाद में, the gene constructs were inserted into an expression vector. Agrobacterium tumefaciens जो है was transformed with the expression vector. तो E. coli प्लाज्मिड ने क्या किया, एग्रोबैक्टीरियम या TI प्लाज्मिड से हमने इसको एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens में डाल दिया। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस प्लांट को इन्फेक्ट करता है और प्लांट में ट्यूमर फॉर्मेशन करवाता है, और उसकी उनके डीएनए में भी जाके इसका जो डीएनए है इंटीग्रेट होता है। इस तरीके से हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है बीटी टॉक्सिन का, इसके अंदर चला जाएगा और एक्सप्रेस होगा। तो इसमें बीटी टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो recombination transfer the gene construct along with the promoter and poly sequences with the promoter and poly sequences to the TI plasmid. Tobacco plants were infected with the recombinant Agrobacterium tumefaciens and BT gene constructs were transferred to the plant cells. Gene library, a collection of clones containing all the DNA fragments from one source. जो है वो DNA library कहते हैं। Creating a genomic DNA library is very much essential. और इसमें एक cDNA complementary DNA library जो बनाई जाती है, जिसमें बस वही DNA रहते हैं जिनका सीक्वेंस जो है वो mRNA से ट्रांसलेटेड किया गया है। So it called as an complementary cDNA library. हम इसमें देखेंगे कि जैसे कि special column contains a short oligo chains of those are linked to cellulose.
तो इसमें टोटल सेल्यूलर आरएनए जो है isolated from cells and pass through the column. So poly A tails of mRNA pair with the oligo-DT chains and the mRNA retained in the column. तो mRNA के लिए जो complementary sequence है वो उस column में होता है. इसमें mRNA डालने के बाद वो उसको attach हो जाता है. So where the rest of the RNA passes through, and mRNA is washed from the column by adding the buffer that breaks the hydrogen bonds between poly A tails and the oligo-T chains. So इसको फिर इल्यूशन करने के बाद में हमें क्या मिलता है, mRNA with poly A tails मिलता है. So mRNA जो है ओलिगो प्राइमर्स के साथ अनिल होता है जिसमें poly A tails और mRNA provides 3 OH groups, 3 prime hydroxy groups to DNA synthesis. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और डीएनटीपी से क्या होता है कि जो mRNA है वो सिंथेसाइज करते हैं डीएनए फ्रॉम mRNA टेम्पलेट. तो आरएनए डीएनए हाइब्रिड मॉलिक्यूल briefly treated with the RNases which partly digest the DNA RNA strand. तो RNA strand digestion करने के बाद में जो उसका parallel complementary strand है उसे cDNA कहा जाता है. DNA polymerases synthesize the second DNA strand by using short undigested RNA pieces as primers. तो ये जो complementary cDNA हमें मिला है जिसको हमने mRNA से तैयार किया है तो उसका फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है लाइगेज और अदर एंजाइम से बनाया जाता है. जीन लाइब्रेरीज का जो स्क्रीनिंग है तो प्लेटिंग क्लोन्स ऑफ द लाइब्रेरी, प्रो प्लेटेड कॉलोनीज और प्लेक्स. तो इससे क्या है कि जिसे हमने एक स्केल के बारे में देखा तो आइडेंटिफाई किया जाता है. बैक्टीरियल कॉलोनीज मास्टर प्लेट पे ली जाती है, माइक्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के ऊपर इनको एब्सॉर्ब किया जाता है सेल्स को. A few cells from each colony adhere to the nitrocellulose membrane. ये होने के बाद में the cells are disrupted and their DNA is denatured and fixed to the filter. तो फिल्टर को फिर जैसे हमने देखा कि लेबलिंग किया जाता है 32 से जो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट है और उसके बाद में लेबल प्रोब हाइब्रिडाइजेस विद एनी कंप्लीमेंट्री डीएनए. Excess probe is washed off and the membrane is overlaid with the X-ray film, which detects the presence of the probe. The comparison of the membrane with the master plate reveals the bacterial colonies have the DNA of interest. So इसके बाद में है in situ hybridization. तो इसमें क्या है कि डीएनए प्रोब्स यूज किए जाते हैं जो डिटरमाइन करते हैं क्रोमोसोमल लोकेशन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ अ जीन इन द सेल. So may also be used to detect the localization of mRNA expression in multicellular organisms. तो यहाँ पे क्या है कि जो हमें कलर फॉर्म्स दिख रहे हैं is due to in situ hybridization of the DNA, location of the genes of interest. उसके बाद में होता है पोजिशनल क्लोनिंग, आइसोलेटिंग जीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन ऑन अ जेनेटिक मैप. तो जीन्स को उनके लोकेशन के हिसाब से जेनेटिक मैप पे आइसोलेट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है. So this is a methodology for the isolation and identification of gene or DNA of interest with carrying particular traits onto an chromosome. उसके बाद में DNA sequences can be determined and analyzed. Restriction fragment length polymorphism RFLP, इसका RFLP और RAPD इन दोनों चीजों का एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा यूज आज की तारीख में सीड इंडस्ट्री में हो रहा है. Some DNA fragments have different restriction sites due to mutation for the same restriction enzyme. आप में से किसी हैंड रेस किया था शायद. So some DNA fragments have different restriction sites due to mutation for the same restriction enzymes, which causes polymorphism within a population. तो कुछ DNA fragments में क्या होता है कि slightly sequence का change होता है
और ये चेंज जो होता है रिस्ट्रिक्शन साइट्स में होता है म्यूटेशन की वजह से, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की सिलेक्टिविटी डिफर होती है और इसमें डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंटेशन होते हैं, जिसकी वजह से उस पॉपुलेशन में जो डाइवर्सिटी है, वेरिएशन है, वो हम स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक एंसेस्ट्रल क्रोमोसोम डीएनए है जिसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कर दिया गया। तो इसमें कुछ म्यूटेशन की वजह से, पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से रिस्ट्रिक्शन साइट्स जो है वो चेंज हो गई और उसकी वजह से इस डीएनए के जो फ्रैगमेंट है, 3rd नंबर इमेज में हम देख सकते हैं, दे ऑल फ्रैगमेंट्स वे सेपरेटेड इन अ डिफरेंट मैनर। और आरएफएलपी एनालिसिस के बाद में एक जो बॉब का डीएनए था, जो का डीएनए था, तो इन दोनों में जो भी डिफरेंस आया वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उस आइडेंटिफिकेशन के बाद में हमें ये पता चलता है कि इसमें कौन सा वेरिएशन है। सो दिस above example assumes that Bob is homozygous for the A pattern and Joe is homozygous for the B pattern. तो वेरिएशन या डाइवर्सिटी स्टडी करने के लिए आरएफएलपी या आरएपीडी का यूज किया जाता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है डीएनए सीक्वेंसिंग, वन ऑफ द मेथड दैट चेंज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कंप्लीटली। सो इसमें एक जो मेथड है जिसको सैंगर्स डाइडिऑक्सी सीक्वेंसिंग मेथड कहा जाता है, जिसमें डाइडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट डीडीएनटीपी लैक्स 3' हाइड्रोक्सी ग्रुप which terminates the DNA synthesis। तो इसका यूज करके डीएनए सीक्वेंसिंग किया जाता है। So this is a difference where deoxyribonucleotide triphosphate you can see in one image, and at other image जहाँ पे डाइडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, हम देख सकते हैं जिसमें एक ऑक्सीजन ग्रुप जो है मिसिंग है, दैट्स व्हाई उसे डीऑक्सी कहा जाता है। तो इस तरीके से जो फ्रैगमेंट जो डिटरमाइन किए गए हैं, सेपरेट किए गए हैं, उनका ऑटो रेडियोग्राम लिया गया है, तो उनका सीक्वेंस डिटरमाइन किया जाता है और उनको कंपेयर करके उनका डिफरेंसेस जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। A single standard DNA fragment whose base sequence is to be determined is isolated. Each of the 4 DNTP is tagged and with the fluorescent dye and Sanger sequencing reaction carried किया जाता है। The fragments that ends the same base have the same color dye attached. The products are denatured and DNA fragment produced by 4 reaction mixture are then loaded into a single well on an electrophoresis gel. तो जिसमें fragments migrate through gel according to size. तो fluorescent dye on the DNA is detected by laser beam, जिससे ये appear होता है कि each fragment has a peak on a computer printout and the color of the peak indicates which base is present. तो इसमें हर एक बेस आइडेंटिफाई किया जाता है न्यूक्लियोटाइड का। The sequence information is read directly into the computer, which converts it into the complementary target sequence. तो इस तरीके से हम complementary target sequence जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसको डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। आरएफएलपी is one of the important thing. Microsatellites, variable number of copies of repeat sequences possessed by many organisms can be amplified with the help of PCR, combined with the RFLP analysis जो हमने अभी देखा, for more through a fingerprint. So इसमें हम देख रहे हैं the patterns of bands produced by different samples are compared in an electrophoresis gel, जो हमें सबसे नीचे दिख रही है, and the blood stain specimen matches DNA from suspect 2. तो फॉरेंसिक में जो है जो एनालिसिस किया जाता है, तो हम जो देखते हैं कि किसका डीएनए किससे मैच होता है या नहीं होता है, वो इस एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से वो से किया जाता है और डीएनए जो है वो मैच किया जाता है। इस जेल में हम देख रहे हैं कि 3 डिफरेंट डीएनए सैंपल्स लोड कर दिए गए,
और जिससे हमें पता चल रहा है कि जो कौन से दो डीएनए सैंपल्स मैच कर रहे हैं उनका सीक्वेंस, और अकॉर्डिंगली वो सेम ही है, ऐसे हम उससे पता लगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो डीएनए का एनालिसिस किया जाता है फॉरेंसिक में या कुछ आपराधिक घटनाओं में, तो इस मेथोडोलॉजी से किया जाता है। Molecular techniques are increasingly used to analyze gene function. So forward genetics जो है, जिसमें begins with a phenotype to a gene that encodes the phenotype. उसके अलावा reverse genetics भी होता है, जिसमें begins with the gene of unknown function, first inducing mutations and then checking the effect of mutation on the phenotype. तो इसमें क्या होता है कि जीन का जो phenotype है वो आइडेंटिफाई किया जाता है, पता चलता है कि ये जीन क्या कर रहा है, एंड देन लेटर ऑन एक कोई अननोन जीन है तो उसको डिस्टर्ब किया जाता है, और डिस्टर्ब करने से हमें पता चलता है कि उससे कुछ कौन सा फंक्शन या फिनोटाइप इफेक्ट हुआ है। इसकी हेल्प से हम उस जीन का फंक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका रोल जान सकते हैं। उसके बाद आता है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। रिवर्स जेनेटिक्स में क्रिएटिंग अ म्यूटेशन इन पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस and then studying the effect of this mutation on the organisms. Silencing genes with the RNAi. Using RNAi for the treatment of human disease, lowering the APOB with RNAi. तो RNAi से ट्रीटमेंट जो है ह्यूमन डिसीजेस की भी हो सकती है, मोस्ट ऑफ द डिसीजेस में ये एक्सपेरियंस किया जाता है। द माउस मॉडल जेनेटिक ऑर्गेनिज्म जो है जिसमें इसका सबसे पहला स्टडी किया गया, दैट इज मस्कुलस, सॉरी। तो कैसे आरएनएआई टेक्नोलॉजी या जीन साइलेंसिंग काम करता है, तो हम देख रहे हैं कि इसके एडवांटेज क्या है, क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमंस, जिसमें माउस को लिया गया। माउस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमंस, स्मॉल साइज, रैपिड रिप्रोडक्शन, इजी टू रेयर इन द लैबोरेटरी, टॉलरेंस इन ब्रीडिंग। तो इसमें जो माउस है इनको लिया गया 20 डे, उनका जो साइकिल है इसमें कुछ जीन्स को साइलेंस किया गया फॉर द स्टडी, और उसके बाद में उसको कुछ एनालिसिस कर दिया गया कि जीन साइलेंट करने के बाद कौन सा फंक्शन जो है वो अफेक्ट हो रहा है उसके नेक्स्ट जनरेशन में। तो फार्मास्यूटिकल्स में हम कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर टेक्निक से प्रोड्यूस किए गए हैं। इसमें ह्यूमन इंसुलिन है, स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया है, जैसे कि मॉडिफिकेशन ऑफ सम सर्टेन बैक्टीरिया फॉर द एनहांस्ड एफिकेसी, कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, बीटी टेक्नोलॉजी है, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड ड्रग्स भी है, जेनेटिक टेस्टिंग भी हम कर सकते हैं, ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जीन थेरेपी है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स है, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ जीन्स इनटू ह्यूमन टू ट्रीट डिसीज जो है, ऐसी चीजें हम इससे कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ टेक्निक्स जिन्होंने ह्यूमन या जो भी हमारा इवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसको रिवोल्यूशनाइज कर दिया, and we have several resources available with there for that. So इसी मेथोडोलॉजीज का यूज करके कोविड-19 का जो डीएनए है वायरस का वो आइडेंटिफाई किया गया, उसके ऊपर जो ट्रेड्स है, कौन सी ट्रेड की वजह से कौन सा फंक्शन इफेक्ट हो रहा है, या कौन सा ट्रेड की अगर हम ब्लॉक कर दे उसकी वजह से हम उसके वायरलेंस फैक्टर को जान सकते हैं, ये पहचाना गया है। इसके अलावा पीसीआर टेस्टिंग में भी हम इस वायरस को मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं और कंफर्म करते हैं कि ये उस पेशेंट की बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है। So it was all about the important techniques. So if you have any discussions and doubts, you may please ask. We have 10 minutes of time for the discussion, then we'll move towards the next technique. You may ask, Mr. Prashanthi, the gene that is responsible for coding for the proteins that kills insect by insect via. So if you have any questions, you may please ask over here. और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम डेली लाइफ में देख रहे हैं, जैसे बीटी है या इंसुलिन है, ऐसी कौन सी दवाएं है, या फिर ये जो कोविड का जो वैक्सीन डेवलप किया गया है, कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, ये किस प्रोसेस से डेवलप किया गया है? यस,
Covishield is what type of vaccine and Covaxin is what type of vaccine? Any one of you, please? You may raise your hand as well as you may type the answers in the chat box. Yeah, Mr. Hardik Padmankar, are you there? Prasenjit Kumar, Om Prakash, Miss Priya Patel, Mr. Ajit Kumar, Ritika Patil. और ऐसी कौन सी मेथोडोलॉजीज या चीजें हम देख रहे हैं जो हमारी डेली लाइफ में या वी आर कमिंग अक्रॉस इट जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हेल्प से की गई है? ये कोविड जो है इसका हम जो यस कोविशील्ड हैज एन एंटीजन प्रोसेस या एंटीजन प्रोसेस. ओके, व्हाट अबाउट कोवैक्सीन, हाउ डज इट वर्क्स? और अगर हम मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स में पीसीआर से कोविड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो वो कौन सी मेथोडोलॉजी से करते हैं? Because you all are from life sciences or agriculture sciences, biotechnology background, so you all must know about this. RT-PCR है या एंटीजन टेस्ट है? दोनों में से कौन सी टेस्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? एंटीजन टेस्टिंग इफेक्टिव है या पीसीआर टेस्ट इफेक्टिव है? और जो इफेक्टिव है उसमें एडवांटेजेस क्या है? कौन सी चीज की वजह से वो इफेक्टिव है? Yes, Mr. Hardik, which is effective test? Either antigen is effective or PCR is effective. Which is most accurate? Mr. Kapil, PCR. Okay. Antigen is effective. Why it is effective, Mr. Hardik? Antigen क्यों effective है? Why the antigen test is effective? It gives perfect results. Okay. Actually, the PCR is more effective than the antigen. एंटीजन में कुछ दिक्कतें आ सकती है जिसमें फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं, तो इसके लिए पीसीआर प्रेफर किया जाता है सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए. और पीसीआर की एक्यूरेसी जो है वो एंटीजन से बहुत ही ज्यादा है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? यस मिस्टर आदर्श, वी कैन टॉक नाउ. यू मे अनम्यूट योरसेल्फ. सर एंटीजन टेस्ट में जो होता है वहां पे पर्टिकुलर मतलब प्रोटीन को टारगेट किया जाता है जो स्पेसिफिक होता है सार्स को वायरस मतलब कोरोना वायरस के लिए, उस प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया जाता है एंटीजन टेस्ट में. वेरस सर पीसीआर जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वहां पे मतलब एग्जैक्टली आरएनएस जो स्ट्रैंड है कोरोना वायरस के लिए उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इसलिए सर ये ज्यादा इफेक्टिव है और ज्यादा एक्यूरेट होता है. बिल्कुल. थैंक यू मिस्टर आदर्श, थैंक यू सो मच. So this is a very good explanation why the PCR is more effective as compared to antigen. अगर हम एक किसी वायरस के पीस को आइडेंटिफाई करेंगे तो और उससे बेहतर ये है कि पूरा वायरस हम आइडेंटिफाई कर ले, तो पीसीआर में यही एम्पलीफाई होता है जिससे हम एक्यूरेट रिजल्ट्स डिलीवर कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कैन नॉट रिलाई ऑन टू एंटीजन, क्योंकि हो सकता है फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स उसमें आ जाए और एंटीजन पॉजिटिव भी हो सकता है टेस्ट कुछ गलतियों की वजह से. लेकिन ये जो चीज है ये पीसीआर में नहीं होती है. फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स पीसीआर में यूजुअली आते ही नहीं है, इतनी इसकी एक्यूरेसी है.
I have one more presentation with me, but I think what we have studied today is in bit detail. तो फिर भी हम पीसीआर का इम्पोर्टेंस क्या है और इसको कोविड के लिए क्यों यूज किया जाता है, ये WHO के प्रेजेंटेशन से ही अब देखेंगे. मैं उसका एक प्रेजेंटेशन आपको शेयर करता हूँ. So we'll be learning short introduction about polymerase chain reaction. This is one of the laboratory training for field epidemiologists from the World Health Organization का ये presentation है. इसमें PCR के बारे में डिटेलिंग किया गया है. So why it is important और इसमें कुछ objectives भी है. So at the end of presentations will be know that history of PCR, definition. Okay, we'll go ahead with. So it was invented and patented in 1983. So it was a revolutionary technique कि जिसके inventors को Nobel Prize भी मिला है. तो इसमें क्या है कि enzymatic amplification of DNA होता है in vitro, जो भी सेल में होता है वैसे बाहर किया जाता है, जिसमें 2 short sequences of the DNA जरूरी होते हैं और repetition of 30 to 35 cycles of 3 steps has been taken place over here. So DNA consists of 4 elements A, C, G and T nucleotides. और DNA जो molecule होता है वो double stranded होता है, bond together by chemical forces, except single stranded DNA और RNA viruses. तो इन viruses में क्या होता है कि RNA as a nucleic material होता है rather than DNA. तो double stranded DNA जो है, 2 short DNA fragments that stick specifically to each other of the DNA strands at some distance of each other. तो primers की help से, specific primer की help से certain bacteria, bacterial species या genes की help से उनको identify करके amplify किया जाता है PCR में. So apparatus to perform 35 cycles of a 3 temperature procedure is 95 degree Celsius. पहला denaturation का process होता है, उसके बाद में जो process होता है उसको annealing of primers कहते हैं, जो 50 to 60 degree Celsius पे होता है, और other thing is at 72 degree Celsius जिसमें extension of the primers होता है. तो actual PCR experimentation में ये temperatures vary भी हो सकते हैं, time भी इसका vary हो सकता है. Put into the one reaction tube. इसमें क्या है कि एक reaction tube में sample मतलब टारगेट डीएनए लिया जाता है जो हमें एम्प्लीफाई करना है. प्राइमर्स फॉर द स्पेसिफिक डिटेक्शन, उस डीएनए को आइडेंटिफाई करने वाले प्राइमर्स लिए जाते हैं. मल्टीप्लाई करने के लिए एंजाइम्स लिए जाते हैं, और दूसरे जो डीएनए हमें कंस्ट्रक्ट करने हैं उसके लिए तो हमें न्यूक्लियोटाइड्स लगने वाले हैं ATGC, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स भी लिए जाते हैं. तो इसे रिएक्शन मिक्सचर कहा जाता है. ये सब करने के बाद में ये जो ट्यूब है इसको इंस्ट्रूमेंट में PCR मशीन में रख दिया जाता है, और जो प्रोग्राम इसका सेट किया गया है डिफरेंट टेम्परेचर्स और साइकिल्स का वो स्टार्ट किया जाता है. If the primers fit, then amplification of the target DNA starts, and if primers do not fit, it will not amplify the target DNA. मतलब जो DNA है हमारा इंटरेस्ट का, वो अगर सैंपल में नहीं है, या कोविड का जो RNA है वो सैंपल में नहीं है, तो उसको प्राइमर्स नहीं बैठेंगे तो उसका एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा, और अगर है तो उसका एम्प्लीफिकेशन होगा. तो it detects if there is a PCR product. तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसमें लॉगरिथमिक मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, इसमें लॉगरिथमिक टाइप वाइज से मल्टीपल उसके फ्रैगमेंट जो है डीएनए के एम्प्लीफाई किए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं. सो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जिसमें this is very quick method to identify, it is reliable method, it is very sensitive method, is relatively easy as well as it is very specific method. लेकिन इसके कुछ disadvantages भी है.
इसके लिए जो इक्विपमेंट लगता है वो बहुत कॉस्टली है। इसके लिए टैग पॉलीमरेज लगते हैं, वो भी कॉस्टली है। इसमें अगर कंटेमिनेशन आता है तो रिजल्ट डिस्टर्ब होते हैं, मतलब अगर प्रेजेंट भी होगा डीएनए और वो डाइजेस्ट हो गया होगा कंटेमिनेशन से, तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। False reactions, internal control, cross reaction, enrichment steps in sample, capacity building needed, unspecific amplification of a microorganism, DNA also possible. So इसका जो application है, so it's used in detection of specific genome sequence, जिसमें classical with a primer pair, nested amplification of larger area than specific detection in multiplied genome part, real-time PCR to quantify the amount of genome in the sample, जितना उसमें amount है वो भी हम quantify कर सकते हैं DNA का. Detection of RNA with reverse transcriptase is also possible. Screening of specific genes for unknown mutations is also possible. Genotyping using short primers or primer pairs is also often repeated in the genome. So इसके एप्लीकेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पीसीआर भी है, इसकी वजह से कंटेमिनेशन जो होता है उसमें, अगर कोई कोविड पेशेंट का डीएनए सैंपल हमने सैंपल ले लिया कोविड पेशेंट का और वो लैब में टेस्ट करने के लिए दे दिया, अगर उससे बहुत वक्त गुजरता है, उसका हैंडलिंग ठीक से नहीं होता है, तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट न्यूक्लियोसाइड जो है, न्यूक्लियेजेज जो है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ऑफ माइक्रोबियल ओरिजिन या कुछ बाहर के, तो वो उस डीएनए को डाइजेस्ट कर देंगे और इसकी वजह से प्रोटोकॉल में मिस्टेक की वजह से फेलियर आ सकता है या फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट भी आ सकता है. डिफरेंट मटेरियल पार्ट्स ऑफ द सैंपल कैन इनहिबिट द पीसीआर प्रोसेस. तो ये सब चीजें हैं कि जिनका हमें ध्यान रखना होता है एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान. अदरवाइज ये फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट जो हमें कोविड पेशेंट के आते हैं पीसीआर से, वो हैंडलिंग एरर की वजह से आते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन सही न होने के कारण से आते हैं. तो पीसीआर से हम कुछ डायग्नोसिस कर सकते हैं. वायरसेस के जो डायग्नोसिस है प्रेजेंस है, मतलब इसको कोई डिसीज हुआ है क्या, जैसे HIV, सार्स, कोविड, H1N1 बर्ड फ्लू जो है, इनका हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं. माइक्रोबियल्स में मेनिंगोकोकस और लेजियोनेलोसिस का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है. एनालिसिस फॉर रेजिस्टेंट जीन्स, MRSA, VRE, इससे हम स्टडी कर सकते हैं. सो इन्वेस्टिगेशन मेथड्स और स्ट्रेटेजीज भी है कि जिससे जिसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस ने डिफाइन कर दिया है, उनका यूज जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्सेस के लिए, पैंडेमिक अलर्ट के लिए किया जाता है. सो इट वाज एन शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पीसीआर. नेक्स्ट सेशन जो हमारा रहेगा उसमें हम पीसीआर के बारे में ज्यादा डिटेलिंग करने वाले हैं. उसके अलावा और कुछ मेथोडोलॉजीज हम देखने वाले हैं और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स का थोड़ा सा और डिटेलिंग और उसका एप्लीकेशन भी हम स्टडी करने वाले हैं. आपको किसी को कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है तो आप कृपया पूछ सकते हैं. यस, तो मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी स्टडी में RFLP या REPD का यूज होता है. ये डाइवर्सिटी स्टडीज की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई वी डू डाइवर्सिटी स्टडीज, और सबसे ज्यादा सीड इंडस्ट्री में डाइवर्सिटी स्टडीज की जाती है, तो इससे हमें क्या पता चलता है. क्वालिटी कंट्रोल के तौर पर डाइवर्सिटी स्टडीज सीड इंडस्ट्री में की जाती है. सो व्हाई इट इज नेसेसरी, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू. If you're from life sciences or molecular biology or biotechnology origin background, as well as if you're from agriculture sciences, then it is very important. सीड इंडस्ट्री में आप सभी जॉब कर सकते हो R&D में. तो R&D में जो क्वालिटी कंट्रोल का काम होता है सीड डाइवर्सिटी का या वेरिएशन का, जिसमें RFLP का यूज किया जाता है, मार्कर्स यूज किया जाता है कुछ. सो व्हाई इट इज सो, व्हाई द डाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट पैरामीटर इन द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द सीड इंडस्ट्री. यस प्लीज. और ये कोविड वायरस में भी हमें डाइवर्सिटी के बारे में पता चला है. सो व्हाई द डाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन इन द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सीड इंडस्ट्री. एनी वन ऑफ यू प्लीज. यस.
Yes, Mr. Adarsh, Mr. Hardik, Miss Ritika, Mr. Om Prakash, Mr. Prasenjit, सीड इंडस्ट्री में डाइवर्सिटी देखना क्यों जरूरी है? सीड इंडस्ट्री जो सीड्स देती है फार्मर्स को, तो उसके रिजल्ट्स एक जैसे आने चाहिए. अगर सीड में डाइवर्सिटी है सो दैट में अफेक्ट द यील्ड, दैट में प्रोड्यूस सेवरल इश्यूज. और अगर सीड्स में कुछ कंटेमिनेशन हुआ है, क्योंकि सीड इंडस्ट्री खुद तो सभी सीड जर्मिनेट नहीं या प्रोड्यूस नहीं करती है, वो फार्मर से प्रोड्यूस करके लेती है. स्पेशलाइज्ड फार्मर्स होते हैं उसके लिए, सीड प्रोडक्शन एक्सपर्ट्स होते हैं. तो डाइवर्सिटी स्टडी करने के बाद में हमें ये पता चलता है कि इसमें अगर डाइवर्सिटी है मतलब इसमें अडल्ट्रेशन प्रेजेंट है, तो अकॉर्डिंगली वी शुड गो फॉर द क्वालिटी थिंग्स. तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ये रिजल्ट एनालाइज करने के लिए सीड इंडस्ट्री में डाइवर्सिटी का यूज किया जाता है. और उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है डाइवर्सिटी एनालिसिस में? पीसीआर यूज होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होता है, जेल डॉक्यूमेंटेशन यूज होता है. और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटेशन विद द मार्कर्स, ये जो डिफरेंसेस है उसके डीएनए में, डीएनए की डाइवर्सिटी में, ये एनालाइज किए जाते हैं. तो डीएनए की डाइवर्सिटी एनालिसिस कैसे की जाती है? उसका डाइजेशन किया जाता है, उसके फ्रेगमेंट्स में जो वेरिएशन होता है वो हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस पे दिखता है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ डाइज से स्टेनिंग करते हैं, और इसका स्टडी करने के बाद में फिर हम कंक्लूड करते हैं कि इसमें डाइवर्सिटी कितना है. If any one of you may have any questions, you may please ask. Yes, please. How many of you have seen the PCR instrument? आपने PCR instrument देखा है क्या? Any one of you? How many of you have seen the PCR instrument? Please answer in the chat box. कुछ लोगों ने आंसर दिया है, नहीं देखा है, इसका मतलब है कि बाकी के बहुत सारे लोगों ने पीसीआर इंस्ट्रूमेंट देखा है. तो जिन्होंने देखा है कृपया आप मुझे बताएंगे कि पीसीआर इंस्ट्रूमेंट कैसे होता है, कैसे काम करता है? यस प्लीज. यस, ऋषि सोनी आपने देखा है शायद, रवि राठौर आपने देखा है, राकेश आपने देखा है, प्रीतम कुमारी आपने देखा है शायद. आपका आंसर नहीं आ रहा है. इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट. पीसीआर इंस्ट्रूमेंट जो है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, और इसकी जो साइज होती है विच इज फ्रॉम 20 to 30 सेंटीमीटर टू 1 फीट के आसपास. इतना ये कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जो पोर्टेबल भी है, और इसमें ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है किए जाते हैं. इसमें वेल्स होते हैं, 99 वेल्स या 128 वेल्स होते हैं, जिसमें हमारा रिएक्शन मिक्सचर जो है वो कुछ माइक्रोसेंट्रीफ्यूज ट्यूब जो होती है छोटी छोटी, उसमें ऐड करके रखा जाता है. अगर हम डीएनए को एडिशन कर रहे हैं तो उसका एडिशन कैसे किया जाता है? किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में? व्हाट इज यूज्ड टू पिक अप द डीएनए ऑफ द सॉल्यूशन? क्योंकि ये सभी माइक्रो क्वांटिटीज में है, डीएनए तो आपको दिखता भी नहीं है. और 1 ml का
1000वां पार्ट जो है वो भी हमें कभी कभी सैंपल लेना पड़ता है इसमें। तो ये कैसे लिया जाता है? How the solutions are handled while preparing the reaction mixture? Restriction endonucleases कैसे ऐड किए जाते हैं? आप सभी ने पिपेट देखा है? How many of you have seen the pipette? How many of you have seen the pipette? Yes. Mr. Hardik, pipette देखा है आपने? लैब में कुछ काम किया है? Yes. Miss Ritika Patel, Atil, Mr. Adarsh Sinha, आपने पिपेट देखा है? No sir. Okay, so it's okay. If possible, today I will show you the pipette और इसका हैंडलिंग कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा माइक्रोसेंट्रिफ्यूज ट्यूब के जरिए। तो माइक्रोसेंट्रिफ्यूज ट्यूब्स यूज की जाती है जिसमें माइक्रोलीटर्स का सॉल्यूशन हम बना सकते हैं और इस सॉल्यूशन को हैंडल करने में, पिकअप करने में, मिक्स करने में माइक्रो पिपेट्स का यूज किया जाता है। माइक्रो पिपेट्स एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम 1 ml का 1000वां या जो माइक्रो लीटर्स में होता है 1 माइक्रोलीटर, 2 माइक्रोलीटर, 5 माइक्रोलीटर, 10 माइक्रोलीटर, 100 माइक्रोलीटर्स मतलब 0.1 ml और अप टू 1000 माइक्रोलीटर्स मतलब 1 ml तक का सॉल्यूशन उससे हम हैंडल कर सकते हैं। सो इन माइक्रो पिपेट की हेल्प से ये जो है हैंडलिंग किया जाता है और इस माइक्रो पिपेट्स में रीयूजेबल टिप्स होती है। तो इन टिप्स को सॉल्यूशन में डाला जाता है और माइक्रो पिपेट में एक प्रेशर से ऊपर पिकअप किया जाता है और इसका एप्लीकेशन या मिक्सिंग या हैंडलिंग किया जाता है। तो कल का जो सेशन रहेगा हमारा जिसमें कुछ ज़्यादा हम डिटेलिंग करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं पीसीआर इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम देखने वाले हैं माइक्रो पिपेट्स, इसका हैंडलिंग कैसे किया जाता है। इसके अलावा विल आल्सो बी स्टडिंग मोर डिटेल्स अबाउट सम मॉलिक्यूलर टेक्निक्स जो इंडस्ट्री में यूज होती है। अब जो भी टेक्निक्स आज मैंने आपको बताई है इनका मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज में यूज हो रहा है, कोविड लैबोरेटरीज में इनका यूज हो रहा है। इसके अलावा सीड इंडस्ट्री में इनका यूज होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री R&D में इनका यूज होता है एंड दे आर वन ऑफ द वेरी रूटीन एक्सपेरिमेंट्स नाउ। तो इसके कुछ प्रोजेक्ट्स भी आप पीजी लेवल पे कर सकते हो। So this was all about today's lecture. अभिषेक सर और मिस्टर दीपक सर, कल मुझे कहा था अभिषेक सर ने कि आज कुछ जल्दी सेशन कंप्लीट करना है, इसके आगे और भी कुछ सेशन है। ओवर टू यू दीपक सर। जी सर। सर अभिषेक सर ने कहा था आज कुछ एक सेशन है तो थोड़ा जल्दी खत्म करना है आज। सर 11:50 तक कर दीजिएगा। 11:50 करना है जी, एक्चुअली 12 बजे से दूसरा सेमिनार है। ओके 11:45 तक भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, 11:40 को खत्म करते हैं। फाइन सर, थैंक यू। सो नाउ वी हैव सम इनफ ऑफ टाइम, तो हम एक और प्रेजेंटेशन देखते हैं जिसमें पीसीआर का डिटेलिंग किया गया है। पीसीआर कंपनी का एक प्रेजेंटेशन है ये। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं यहाँ पर। So Biorad is one of the company who is manufacturing chemicals for PCR as well as it is manufacturing the PCR machines.
तो रियल टाइम पीसीआर के बारे में एक प्रेजेंटेशन है बायरेड की ओर से. दिस प्रेजेंटेशन विल कवर सेवरल टॉपिक्स. व्हाट इज रियल टाइम पीसीआर यूज्ड फॉर, हाउ डज रियल टाइम पीसीआर मींस, इंस्ट्रूमेंट्स इसमें कौन से यूज किए जाते हैं, और व्हाट डज रियल टाइम डाटा लुक लाइक, व्हाट how can the crime scene investigator kit be used in a real time setting. So what is real time PCR? The polymer exchange reaction PCR is a process for the amplification of specific segments of DNA. So real time PCR is a specialized technique that allows a PCR reaction to be visualized in a real time as a reaction progresses. तो इसमें क्या होता है कि पीसीआर रिएक्शन जो है वो रियल टाइम में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके रिजल्ट जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं. As we will see, the real-time PCR allows us to measure minute amounts of DNA sequences in a sample. So let's see how it is. The real-time PCR has become a cornerstone of molecular biology. The gene expression analysis, cancer research, drug research, disease diagnosis and management, viral quantification, food testing, percent GMO food, एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग, जीन कॉपी नंबर, तो इन सभी के लिए रियल टाइम पीसीआर का यूज होता है. सो ये कैसे किया जाता है? तो एग्जांपल है BRCA1 एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग. तो ये एक जीन है BRCA1. इट इज अ जीन इन्वॉल्व्ड इन ट्यूमर सप्रेशन, कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन्स. इन ऑर्डर टू मॉनिटर लेवल of expression of BRCA1, real time PCR is used. तो इसमें BRCA1 एम्पलीफाई किया जाता है और रियल टाइम PCR की हेल्प से उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है. इसके अलावा HIV ट्रीटमेंट में, the drug treatment for HIV treatment often depends on the monitoring of the viral load. So real-time PCR allows direct measurement of the amount of virus RNA in the patient. तो इसके accordingly उस जो patient है उसको disease patient को जो भी diagnosis है उसके ऊपर medication दिया जाता है, depends on the viral load. So determination of the percentage of GMO food content. अगर बहुत सारी ऐसी countries है जहाँ पे किसी भी प्रकार का जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बेस्ड फूड जो है वो अलाउड नहीं है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो इसको आरटीपीसीआर टेस्ट से आइडेंटिफाई किया जाता है. सो डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट जीएमओ फूड कंटेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर import and export regulations. So the laboratories of different countries use real-time PCR to measure amount of transgenic virus wild-type DNA. तो wild-type DNA और transgenic जो वायरस से कंपेयर किया जाता है और उससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि whether the GMO food is there or not. How does real-time PCR works? So real-time PCR जो है वो कैसे काम करता है? The best to best understand what real-time PCR is, let's review how regular PCR works. तो regular PCR में कैसे काम होता है? तो regular PCR में क्या होता है कि डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किस तरीके से होता है हम देख रहे हैं यहाँ पे. प्राइमर्स है, डीएनटीपीज है, थर्मल स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है, ये रिएक्शन ट्यूब में डाला जाता है. फिर रिएक्शन ट्यूब डीनेचुरेशन अनिलिंग होता है, उसके बाद में उसका एक्सटेंशन होता है. एक्सटेंशन में टैग पॉलीमरेज एक्सटेंशन कंटिन्यू करते हैं, नए फ्रैगमेंट सिंथेसिस हो जाते हैं, उसका रिपीटेशन होता है. फिर साइकिल 2 में 4 कॉपीज है तो साइकिल 3 में 8 कॉपीज रहेगी, साइकिल 4 में 16 कॉपीज रहेगी, इससे मल्टीप्लाई होता है. सो दैट्स हाउ द ट्रेडिशनल पीसीआर इज यूजुअली प्रेजेंटेड. In order to understand real-time PCR, let's use the true experiment and say all of the calculations and formulas until later. So most importantly, we will start by imaging the PCR itself and not
and only then we'll draw graphs to illustrate what's going on. तो ये माइक्रोसेंट्रिफ्यूज ट्यूब है जिसमें रिएक्शन मिक्सचर लिया गया है, जो रिएक्शन मिक्सचर is about 100 microliters or 50 microliters. To understand real-time PCR, let's imagine ourselves in a PCR reaction tube at the cycle number 25. तो इस reaction tube में a soup of nucleotides, primers, templates, amplicons, enzymes are present, and 1 lakh copies of the amplicons right now are present over there. What is it like last cycle 24? Almost exactly the same, except there were only 5 lakh copies of the amplicon. And the cycle before that, 23, the same, but only 2,50,000 copies of the amplicon. And what about 22? Not a whole lot different, 1,25,000 copies of the amplicon will be present. So if we were to graph the amount of DNA in our tube from the start until right now at cycle 25, the graph would look like this. So right now we are at the cycle 25 in a soup with 1 lakh copies of the target. So what's it going to be like after the next cycle, that is cycle 26? What is going to be like after the next cycle, that is cycle 26? Probably there will be 20 lakhs amplicons present over there. And at cycle 27, 40 lakhs amplicons will be present over there. And at cycle 200, in the theory would be such a huge number of amplicons. That is 10 raised to 25 tons of DNA will be present over there. So to put this perspective, we would be equivalent to the weight of 10 billion planets the size of the Earth. So clump of DNA, the size of 10 billion planets won't quite fit in a PCR tube anymore. That's why realistically, the chain reaction progresses, it gets exponentially harder to find primers and nucleotides, and the polymerase is wearing out. So exponential growth does not go on forever. So जब ये primers कम पड़ते हैं, DNTPs कम पड़ते हैं, amplicons कम पड़ते हैं, so our reaction is not able to move further. So we plot the amount of DNA in our tube going forward from cycle 25. We see that it actually look like. So यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जैसे भी हमारा DNA एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, तो ये इसमें एक फेज है जो लैग फेज, लॉग फेज और एक स्टैग्नेंट फेज भी हमें दिख रहा है. So can all these be used to measure the DNA quantities? So let's imagine we start with 4 times as much of DNA as I do in a picture, or 2 tubes at cycle 25 and work backwards a few cycles. So 25 number का जो cycle है, जिसमें if one has 2,50,000 and I have 1 lakh, then 24 cycle के बाद में 5 lakh होगा मेरे पास, और आपके पास रहेगा 20 लाख का DNA. उसके बाद में 25 साइकिल में मेरे पास रहेगा 10 lakh number of DNAs and आपके पास रहेगा 40 lakh number of copies of that particular DNA. So if you start with the 4 times as much as the DNA template I did, then you reach 10 lakh copies exactly 2 cycles earlier than I would. So what if we start with 8 times less DNA template than I did? तो अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसे होगा? So these calculations have been given over here. Measuring quantities have been given. So at the end 80 lakhs मेरे पास रहेगा और आपके पास जो है वो 10 lakhs तक रहेगा. So what if you started with the 8 times less DNA template than I did? So you would only have 1,25,000 copies right now at the cycle of 25, and you would reach 10 lakh copies exactly 3 cycles later than I would. So मेरा होने के बाद 3 cycle के बाद में copies आपके पास रहेगी. So we describe the position of the lines with the value that represents cycle number, whether trace, process, and arbitrary threshold. This is called CT value, and which is directly related to the starting quantity of DNA by the way of the formula, that is quantity is equal to 2s to CT.
So here, direct relationship between starting amount of DNA and cycle number, that you will reach an arbitrary number of DNA copies is been plotted. How sensitive is real-time PCR? Ultimately, even single copy can be measured. In reality, typically about 100 copies is around a minimum amount. 100 copies of a 200 base pair gene is equivalent to just 20 attograms of a DNA. 20 attograms means how much weight? 2 into 10⁻⁻17 grams. इसमें 100 copies of 200 base pairs genes की है. So how do we actually measure DNA? We reassert that fluorescence in the presence of amplified DNA. Ethidium bromide is very commonly used. SYBR green is one of the dye. Two such reagents. Then they bind to double-stranded DNA and emit light when illuminated with specific wavelength. SYBR green one dye fluoresces much more brightly than the ethidium bromide. This is ethidium bromide, which is a fluorescent dye, and this is SYBR green, another fluorescent dye. तो ये कैसे काम होता है? जो fluorescent dyes है, they attach to the DNA. रियल टाइम पीसीआर इंस्ट्रूमेंट में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है थर्मल साइक्लर मतलब पीसीआर मशीन. दूसरा जो होता है ऑप्टिकल मॉड्यूल दैट डिटेक्ट द फ्लोरेसेंस इन द ट्यूब्स ड्यूरिंग द रन. एंड थर्ड वन इज कंप्यूटर टू ट्रांसलेट द फ्लोरेसेंस डाटा इन द मीनिंगफुल रिजल्ट्स. तो थर्मल पीसीआर में पीसीआर का काम हो जाएगा और ऑप्टिकल मॉड्यूल में फ्लोरेसेंस का डिटेक्शन हो जाएगा. और तीसरा जो है कंप्यूटर है जो फ्लोरेसेंस डाटा कैलिब्रेट करेगा और एनालाइज करेगा और उसका जो मीनिंगफुल रिजल्ट है स्टडी करके हमें बताएगा इसके रिदमिक प्रोग्राम्स के ऊपर. सो दिस इज अ पीसीआर मशीन व्हिच इज Bio-Rad IQ5 रियल टाइम पीसीआर. Another example of mini opticon real time instrument. So ये जो हम मशीन देख रहे हैं नीचे अगर हम देखेंगे तो which is opened one और इसके अंदर एक जो है छोटा सा स्टैंड है या वेल्स हम उसे कह सकते हैं. इसके अंदर हम हमारी ट्यूब्स रखते हैं जिससे हम पीसीआर का मिक्सचर डाल देते हैं. The real-time software converts the fluorescent signals in each well to meaningful data. To set up PCR protocol, set up plate layout, collect data, and analyze the data. Why does real-time data look like? So this is some actual data from recent real-time PCR run. The data like this can be easily generated by preparing dilution series of DNA. The same data set in a log view has been given over here. Once threshold is set, CT values can be calculated automatically by software. Melt curves can tell us what products are in a reaction based on the principle that DNA melts, it becomes single-stranded, intercalate dyes will no longer bind and fluoresce. Melt curves then tell us what products are there in the reaction. Different amplicons will have different melting points and peaks. Primer dimers will have a very different melting peaks further. So how can we use the crime scene investigator to demonstrate the real-time PCR? So this is typical workflow in which introduction to DNA profiling and all this given. The crime scene investigator, forensic में कैसे investigate किया जाता है? It is intended to be an introduction to the polymerase chain reaction. DNA profiling is the use of molecular genetic methods to determine exact genotype of a DNA sample in a way results can basically distinguish one human being from another. The unique genotype of each sample is called DNA profiling. तो हम सबका DNA अलग होता है, इसमें changes होते हैं. इसको हम हमारा DNA profile कहते हैं. Since humans are 99.9% identical, where do crime scene investigators look for the differences in DNA profiles? So they search in areas of genome that are unique from individual to individual and are anonymous. The areas examined are short tandem repeats or STR. So each individual में हर एक difference होता है.
सो इफ मिस्टर स्मिथ का डीएनए हम ले लेंगे और उनकी मदर का और उनके डैड का क्रोमोसोम ले लेंगे, तो जीनोटाइप में जो डिफरेंस है, द डिफरेंस विल बी स्पॉटेड विद द हेल्प ऑफ पीसीआर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इन सभी का डीएनए का प्रोफाइलिंग जो है वो अलग रहेगा, क्योंकि इनमें सीक्वेंसेस में कुछ वेरिएशंस है। उन दोज वेरिएशंस की वजह से इनका मॉलिक्यूलर साइज जो है वो भी वेरी होता है। So 4 different fluorescent tags have been used to identify 7 amplified loci. A lily ladders indicated the arrows. So इस तरीके से हम डीएनएज में डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि पीसीआर ट्यूब में रिएक्शन मिक्सचर लिया जाता है। क्राइम सीन का डीएनए रहेगा और सस्पेक्ट का डीएनए रहेगा, और दूसरा बी सी जो भी सस्पेक्ट्स के डीएनए है वो उसमें लिए जाएंगे, जो भी नंबर ऑफ सस्पेक्ट्स है। इनका रिएक्शन ट्यूब में मिक्सचर रखने के बाद में इसका पीसीआर किया जाएगा, एम्पलीफाई किया जाएगा, जो थर्मोसाइक्लर में होगा 3 घंटे के लिए। आफ्टर दैट जो भी एम्प्लीफिकेशन होगा उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाएगा सैंपल लोड करके। उसके बाद में उसका जो प्रोफाइलिंग हमें ऑब्जर्व होता है, उस प्रोफाइलिंग से हम ये डीएनए मैच कर लेंगे। ए जो है अलील लैडर है, सी जो है सेकेंड वन इज अ क्राइम सीन है जहाँ पे मिला हुआ डीएनए है, और रेस्ट सस्पेक्ट्स के जो डीएनए है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये जो सस्पेक्ट है जिसका कौन सा डीएनए जो है क्राइम सीन के डीएनए से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे सीएस मतलब क्राइम सीन का जो डीएनए है वो ए से नहीं मैच कर रहा है, वो सी से नहीं मैच कर रहा है, वो डी से नहीं मैच कर रहा, लेकिन ये बी जो सस्पेक्ट है बी से मैच कर रहा है। इससे पता चलता है कि बी जो सस्पेक्ट है वो क्राइम सीन पे प्रेजेंट था, वो प्रेजेंट डीएनए उसका है। सो एनवायरनमेंट में भी पीसीआर का यूज होता है, जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स स्क्रीनिंग स्टडी करने के लिए होता है। हेरिडिटरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी इसका यूज होता है। उसके अलावा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में भी इसका यूज होता है पीसीआर का। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टडी करने के लिए हेल्प होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल कंपोनेंट स्टडी करने के लिए पीसीआर का यूज होता है। उसके अलावा साइंटिफिक इंक्वायरी मतलब DNA profiling, experimental controls, interpretation and experimentation result, और use of scientific evidence in the court के लिए भी PCR का use होता है। So how we can use a crime scene kit for the PCR time? तो एक PCR kit है BioRad की, और इसका application कैसे करना है इसका उन्होंने methodology इसमें दिया हुआ है। So this is a gel, blue color की जो जेल है हम हैंड में देख सकते हैं, और जिसमें डीएनए लैडर्स जो है, लाइन जो है ब्लू कलर की डार्क, वो डीएनए लैडर्स है। डीएनए का मूवमेंट है इलेक्ट्रोफोरेसिस होने के बाद में। सो इट वाज ऑल अबाउट द पीसीआर। तो पीसीआर में कैसे डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में पीसीआर का यूज कैसा है, ये अब हमने देखा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर सीड इंडस्ट्री में हमें डिटरमाइन करना है कि क्वालिटी पैरामीटर्स में डाइवर्सिटी क्या है, तो हम ये कैसे डिफाइन करेंगे? Anybody will tell me please how to analyze diversity in the seed industry? इसमें सीड्स के डीएनए एक्सट्रैक्शन किए जाएंगे, इसको डाइजेस्ट किया जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस से, और उनका एम्प्लीफिकेशन किया जाएगा, और इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन होने के बाद में इसका जो लैडर है वो सभी सैंपल्स के साथ में, सभी वैरायटीज के साथ में चेक कर लिया जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो भी सीड्स हमने लिए हैं एनालिसिस के लिए, उसमें कौन से डीएनए प्रेजेंट्स है, कौन से सीड वैरायटी से वो मैच करते हैं, और इससे पता चलता है कि कौन सी सीड वैरायटी का इसमें एडेप्टेशन हुआ है या मैचिंग है, कि इसमें सिमिलैरिटीज कौन सी है या डिफरेंसेस कौन से हैं। सो बेस्ड अपॉन दैट द identification of variation has been carried out, as well as the similarities जो है different varieties में, इनको भी डिटेक्ट किया जाता है।
Any one of you have any doubt, you may please ask or connect with me. Yes. आज की तारीख में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, फार्मा R&Ds है या एग्रीकल्चर की R&Ds है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज है जिसमें कोविड जैसा हम टेस्ट करते हैं, तो इन सभी में स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की बहुत जरूरत है। लेकिन ये ह्यूमन रिसोर्स नहीं अवेलेबल हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स को आज की तारीख में PCR जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन का इंट्रोडक्शन नहीं है या वो उसके ऊपर काम नहीं करते। So this is one of the major concern in today's date कि जो एक सेटबैक है हमारी मेडिकल सिस्टम को भी, जिसमें स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स न होने के कारण PCR के टेस्ट जो है वो कम पड़ रहे हैं। How many of you have worked in the microbiology? कल्चर्स आपने हैंडल किया है? Yes, you may type the things in the chat box. Yes, Mr. Ajit, Mr. Avinash, Ms. Gayatri, Mr. Hardik Patankar, Neeraj Raj, Om Prakash. आप में से कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में काम किया है? अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं तो आपने बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर कुछ काम किया रहेगा। लाइफ साइंसेस के बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स रहेंगे तो आपने बैसिलस के ई कोलाई का एक्सपेरिमेंट्स किया रहेगा। एनी वन ऑफ यू? मतलब आपने सभी ने काम किया हुआ है। यस, मिस्टर हार्दिक पाटनकर, आपने काम किया है बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर? No. Okay. Any one of you, not a single person of you has worked on to microorganisms? Okay, fine. So it was the thing for all of the day today session. कल के सेशन में मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के बारे में हम डिटेलिंग करने वाले हैं और कल आपका एक असाइनमेंट भी दिया जाएगा, वो आपको कंप्लीट करके देना है। इसके अलावा जैसे हमने आज कुछ जो टेक्निक्स देखी है, इनकी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपको इनमें से कोई भी एक टेक्निक आती है तो आपका प्लेसमेंट जो है इंडस्ट्री में बहुत फास्ट हो जाता है, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जल्द ही मिलती है। So I urge you all to learn those techniques either in your institution or somewhere else outside, because they will help to build up your CV further and which will be in great advantage to all of you. तो आज हमने मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के बारे में देखा। बहुत सारी ऐसी मॉलिक्यूलर टेक्निक्स आज हमने देखी है कि जिसमें हमने ये देखा कि ये इनका यूज क्या है और इन्होंने क्या रिवोल्यूशनाइज किया है। अभी हम देख रहे हैं कि कोविड-19 लैबोरेटरीज का सेटअप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ये बढ़ ही रहा है। जितनी भी लैबोरेटरीज है उतनी कम पड़ रही है। सो व्हाई इट इज सो? इतना होने के बाद में ये लैबोरेटरीज कम पड़ रही है, क्यों? क्योंकि कोविड का जो RT-PCR पे एनालिसिस होता है, PCR टेस्ट से हम पता करते हैं, तो उसको लिमिटेशन है। इट्स कोई टाइम कंज्यूमिंग ये जॉब है। इसकी वजह से ये रिपोर्ट्स आने में, रिजल्ट्स आने में हेल्प लगती है, वक्त लगता है और ये जो काम है इनको करने में स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स भी लगता है। अगर अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स करेगा तो ये सभी रिपोर्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आज की तारीख में जितनी भी लैबोरेटरीज एस्टेब्लिश हो रही है उन सभी में वैकेंसीज है और पूरा ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो रहा है। फर्दरमोर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स विल आल्सो बी वेरी कॉमन। इसके अलावा कुछ ही दिनों में जैसे मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैब का सेटअप बढ़ेगा, तो आने वाले कुछ दिनों में, कुछ ही सालों में हम देखेंगे कि
मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की कंसेप्ट भी जोर से मार्केट में आएगी। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्या है? क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज पर्सनलाइज्ड मेडिसिन? यस प्लीज। एनी वन ऑफ यू? मिस रितिका, मिस्टर आदर्श, मिस साक्षी, मिस्टर हार्दिक, मिस्टर गजेंद्र, गायत्री, कुणाल कांत, Manisha, what is personalized medicine? Have you come across personalized medicine? हमारे डीएनए प्रोफाइल के हिसाब से, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे लिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो भी फ्यूचर में इंटरव्यूज होंगे वो हमारी डीएनए प्रोफाइलिंग के ऊपर होंगे, जिससे हमारी बॉडी में हमारे जो जीन्स है उसमें कौन से ट्रेट्स है, हमें कौन सी डिसीज हो सकती है, हमारी क्या हैबिट्स है, हमारी थॉट प्रोसेस कैसी हो सकती है, ये सब चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोफाइलिंग किया जाएगा, पीसीआर टेस्ट से स्टडी किया जाएगा और आपका सिलेक्शन उसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा, आपका डीएनए सीक्वेंस जो है। ये सब बातें भी हम कल देखने वाले हैं कि इनका इम्पैक्ट क्या है, इनका एप्लीकेशन क्या है। And I request all of you to go through methodologies. आज जो भी हमने सेशन में देखा है, सुना है, पढ़ा है, you all do search all those things and go through those materials because this is very important. अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर या लाइफ साइंसेस में कहीं पे भी करियर करना है, then it is a must to you that you should be able to handle those techniques. पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में क्या होता है कि हर एक को कोई सेम दवा सूट नहीं कर सकती है। जैसे हम अभी देख रहे हैं कि रेमडेसिविर जो मेडिसिन है, जो अभी बहुत ज्यादा डिमांड में है, ये सभी शरीर को, सभी लोगों को सूट नहीं कर रहा है। इसके साइड इफेक्ट्स भी हम देख रहे हैं और साइड इफेक्ट की वजह से भी डेथ्स हो रही है या कुछ सीवियर इश्यूज हो रहे हैं हेल्थ के। तो अगर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के तौर पे इसका स्टडी किया गया, इसका कम्प्लीमेंट्री जो बात है कि ये सूट होगा या नहीं होगा, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक जो पेशेंट है उसके लिए, और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि रेमडेसिविर देना है या नहीं देना है। इसके अलावा हमें एडवांस में पता चल सकता है मॉलिक्यूलर टेक्निक से, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से कि हमें कौन सा डिसीज फ्यूचर में हो सकता है, आइदर डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिसीज और एनी अदर डिसीज और कैंसर। आपको पता होगा कुछ जो हॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं, इसमें वन ऑफ द एक्ट्रेस इज एंजेलिना जोली। इनकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर का डिसीज था और इन्होंने जब इनका सीक्वेंसिंग करवा लिया तो इन्होंने ये डिटेक्ट कर लिया कि इनमें भी ब्रेस्ट कैंसर के लिए जीन्स प्रेजेंट है और इनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने की 90% प्लस पॉसिबिलिटीज है। सो इन्होंने एडवांस में वो सर्जरी करके वो जो जीन्स से रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स थे वो निकाल लिए। सो शी इज फ्री फ्रॉम द डिसीज नाउ। तो ये भी हमें पता चलता है और इससे हम खबरदारी ले सकते हैं, कुछ उपाय योजनाएं कर सकते हैं और डिसीज होने के पहले हम उससे क्योर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिसीजेस जो है वो हेरिडेटरी होते हैं एंड दोज हेरिडेटरी डिसीजेस में नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई, हमें पता नहीं चलता है। जैसे किसी को डायबिटीज है तो ये हेरिडेटरी भी हो सकता है। तो ये पता चलना करने के लिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इससे हम पता कर सकते हैं कि किसी को पर्सनलाइज मेडिकेशन के जरिए या पर्सनलाइज ट्रीटमेंट के जरिए इन एडवांस हम कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं या ये पता कर सकते हैं कि उसके लिए क्या सूट करेगा और क्या नहीं करेगा। तो आप में से किसी को कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो।
how many of you would like to make your career in the R&D laboratories, either biotech or agriculture, pharmaceuticals में? Yes. मिस्टर हार्दिक, खेती करना चाहते हो या R&D में काम करना चाहोगे आप? वैसे खेती में भी R&D हो सकती है. Okay, both. Great answer. Good. Yes, Mr. Adarsh, what you would like to do in the future? Mr. Adarsh Sinha? सर R&D लैब में सर वर्क करने का मतलब है, मतलब चाहते हैं करना, बट आगे के लिए अभी सर प्रिपरेशन बहुत लेना है ताकि हम वहाँ पे काम कर पाए. बिल्कुल, आपको प्रिपरेशन बहुत करना पड़ेगा सभी को, और इसी का एक जो एफर्ट है जिसके तहत आपको इन टेक्निक्स और टूल से फैमिलियर करवा लिया जा रहा है, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे जो है आजकल के ये मोस्टली इन्वॉल्व इन सोशल मीडिया, तो आप पीसीआर के बारे में किसी ने नहीं पढ़ा है शायद, ऐसे मुझे आज के सेशन से लगा. लेकिन पीसीआर एक जो बहुत ही इसेंशियल टूल्स एंड टेक्निक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, जिसका एक डेली एप्लीकेशन हमारी सोसाइटी में है, और इसको हैंडल करने के लिए स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होती है. तो इसीलिए आपका यूनिवर्सिटी और प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ने आपको इन चीज़ों को फैमिलियर करवाने के लिए, आपको करियर प्लेसमेंट में हेल्प होने के लिए ये सेशन अरेंज करवाया है. तो आई ऑल्सो अर्ज यू दैट प्लीज गो थ्रू दोज डिटेल्स, प्लीज स्टडी दोज थिंग्स इन डिटेल, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने पीसीआर भी नहीं देखा है, या माइक्रोपिपेट्स की भी इनको जानकारी नहीं है, या माइक्रोबियल हैंडलिंग्स भी नहीं की है. So maybe most of you from the first and second years of graduation, तो जैसे ही लॉकडाउन ओपन अप होता है तो आपके प्रैक्टिकल्स इनिशिएट हो जाएंगे, बट डोंट फॉरगेट टू स्टडी थ्योरी इन डिटेल. तो अभी पीसीआर में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, किट्स आ रही है, किट्स की हेल्प से एक्सपेरिमेंटेशन हो रहे हैं जो फास्ट हो रहे हैं. तो आप सभी को इसके बारे में पढ़ाई करनी है, पता करना है कि ये सब काम जो है वो कैसे हो रहा है. पीसीआर के अलावा जो भी अदर टेक्निक्स है, प्लॉटिंग है, हाइब्रिडाइजेशन है, ये सब टेक्निक्स क्या है, इनसे क्या काम हो रहा है. तो कल हम इनमें से कुछ टेक्निक्स के और डिटेलिंग करने वाले हैं, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन देखने वाले हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग करके क्या आइडेंटिफाई किया जा सकता है ये हम देखने वाले हैं, और हमारा फ्यूचर क्या रहेगा आगे, और हमें कौन सी फील्ड में अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी, इसका भी हम स्टडी कल के सेशन में करने वाले हैं. Yes, please. Any questions, any doubts? If you want any additional information, you may please comment in the chat box. So in tomorrow's session, I'll go with the details. Yes, Mr. Rakesh, Mr. Ravi, Rishi. Mr. Hardik. ओके, ब्लॉटिंग जो है दो टाइप का ब्लॉटिंग होता है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एंड सदर्न ब्लॉटिंग. एक होता है प्रोटीन के लिए, एक होता है डीएनए के लिए. तो इन दोनों ब्लॉटिंग की जो मेथोडोलॉजीज है, इनका एप्लीकेशन है, वो कल हम डिटेल में देखेंगे. इसके अलावा हम हाइब्रिडाइजेशन का भी एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो कल देखने वाले हैं. And I urge you all to go through these methodologies prior to tomorrow's session, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इंडस्ट्री में ये जो काम है ये इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है स्किलफुल वर्कर्स की. सो प्लीज गो थ्रू दोस थिंग्स एंड टू लर्न दोस थिंग्स. इवन विल बी शेयरिंग some more details tomorrow about this those techniques and tools, also sharing certain links. Those will help you to study these things in very much detail. Abhishek sir, it's over to you now. 11:40 को खत्म करना था. अभी they've been consistently for 3 hours or 2 hours online, and they have some other lectures as you said yesterday. Yes, it's over to you sir. Okay. So thank you, Praful Ghadge sir, for today's session. Students, if you have any doubt, you can ask through chat, or like we can allow you as a panelist. Otherwise, we will close this session for today.
सर मुझे जानना था कि मतलब कल के सेशन के लिए मतलब कोई पॉइंट्स या फिर कुछ टॉपिक्स जो मतलब हम लोग अगर पहले से कुछ कवर करके आए यस, तो हमें बेटरमेंट हो, तो वैसे कुछ टॉपिक्स हमें बता यस, दीजिए, तो उसके बारे में हम बिल्कुल। थोड़े मतलब पढ़ के या मतलब रिसर्च करके आए। तो मॉलिक्यूलर मेडिसिन है, उसके अलावा पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स है, या फिर आपने जो कहा ये ब्लॉटिंग और हाइब्रिडाइजेशन है, और क्या हो सकता है आगे फ्यूचर में मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स टूल्स और टेक्निक से कैसे फ्यूचर आगे बढ़ेगा, डीएनए प्रोफाइलिंग और ट्रेड्स और आपके डिसीजेस इन एडवांस में जानने के बाद उसका क्या असर रहेगा उस व्यक्ति के फ्यूचर पे, उसके करियर पे, कैसे उसका सिलेक्शन होगा किस काम के लिए। तो ये सब चीजें जो है वो हम कल देखने वाले हैं, और ये बहुत अभी जल्दी हो जाएगा। मतलब ये जो चीजें है ये 15, 20, 25 साल पहले होने वाली थी, जबकि कोविड की वजह से मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स इतना कॉमन हो गया और बहुत सारी लैब सेटअप हो गई है कि कोविड के जाने के बाद इनको कुछ दूसरा और काम नहीं रहेगा। तो दे विल कम टू मॉलिक्यूलर मेडिसिन और मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक पर्सनलाइज मेडिसिन के ऊपर ज्यादा फोकस हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे सेटअप और इन्वेस्टमेंट का भी फिर आगे इस्तेमाल और यूज होना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है, ये जो सब चीजें मैंने आपको कही है इस पे हम कल ज्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आगे मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स में है। थैंक यू सर। वेलकम।